Good morning, students. Today we'll discuss about the memory allocation techniques. Memory allocation techniques basically divided into two types: contiguous memory allocation, and second one is the non-contiguous memory allocation. Further, contiguous memory allocation are divided into the fixed partitioning, that is called also static partitioning, and variable size partitioning, also called as dynamic partitioning. Non-contiguous divided into two parts: pacing and segmentation. We will discuss all the techniques one by one next few lectures. Okay, but today we discussed about the contiguous memory allocation and their parts: fixed partition and variable partition. What do you mean by the contiguous memory? Suppose we have the main memory. Main memory basically divided into the different partition. First partition always allocated to the operating system, and the rest of the partition we are using for the user processes. Okay, if you are allocated the memory in user process into the contiguous fashion, that is called contiguous memory allocation. Okay, dear. Now discuss about the what do you mean by the fixed partitioning. Fixed partitioning, that means the earliest and one of the simplest technique which can be used to load more than process into the main memory is fixed partitioning or contiguous allocation. Let's see here. In this technique, the main memory is divided into partition of equal size or different. Okay, the operating system always reside in the first partition, we as know that, and while the other partition can be used to store the user processes. The main memory is assigned to the process in continuous way. The memory is assigned to the process in contiguous way. In fixed partition, the partition cannot be overlap, and second one, the process must be continuously present in partition for the execution. मतलब समझने की कोशिश करते हैं फिक्स पार्टीशन से मतलब क्या है. बेसिकली आपके मेन मेमोरी को आपने क्या किया है, डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट ब्लॉक को आपने क्या किया है, फर्स्ट ब्लॉक में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेस्ट ऑफ द ब्लॉक को आपने किसके लिए, यूज़र प्रोसेस के लिए रखे हैं. अगर यूज़र प्रोसेस के लिए आपने रखे हैं तो उसमें क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है उन सब प्रोसेस को मेन मेमोरी में कॉन्टिन्यूस फैशन में एलोकेट कराओगे मेमोरी. ओके, इसलिए से आपने क्या किया है, फिक्स साइज पार्टीशनिंग बोले हैं. और जो पार्टीशन के साइज़ हैं आपके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो पार्टीशन के साइज़ हैं आपके वो क्या होंगे, वो आपके फिक्स्ड होंगे, देयर आर फिक्स्ड होंगे. ओके डियर. और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में आप पहले से कोई भी पार्टीशन नहीं करोगे. अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोसेस यू कैन एलोकेट द मेमोरी, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक पार्टीशन. ओके डियर. बट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फिक्स पार्टीशन की. तो फिक्स पार्टीशन में दो चीज़ें हैं आपकी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? If the size of the process is lesser than the total size of the partition, if the size of the process is lesser than the size of the partition, then some size of the partition is get wastage and remain unused. हमारा क्या है, अगर हमारे प्रोसेस का साइज लेस यानी कि कम है किसी पार्टीशन के साइज से, मेन मेमोरी के पार्टीशन के साइज से, उस टाइम में क्या होगा, कुछ पार्ट आपका मेन मेमोरी के पार्टीशन का वेस्टेज होता है. उस वेस्टेज को ही आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का बोलते हैं. जैसे कि हमने बिलो एग्जांपल में आपको दिखाया है. अगर हमारा सपोज करें फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्या है, कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, P1, P2, P3 और P4. P1 प्रोसेस का साइज 3 MB है, P2 प्रोसेस का साइज 3 MB है, P3 का 3 MB है, P4 का भी 3 MB है. और जो बेसिकली मैंने पार्टीशन किया है, फर्स्ट पार्टीशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेस्ट ऑफ द 4 पार्टीशन आपके जिनके साइजेस क्या है, इक्वल साइज हैं, वो आपके क्या है, 4 MB के पार्टीशन है. बट प्रोसेस का साइज कितना है, 3 MB का है. 3 MB के प्रोसेस को मैंने पार्टीशन 1 को एलोकेट कराया, बट पार्टीशन का साइज कितना था, 4 MB था. तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 MB आपका वेस्टेज हो गया. इस वेस्टेज को आप इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं. प्रोसेस P2 का साइज कितना है, 3 MB है, पार्टीशन
प्रोसेस P2 को एलोकेट कराया है आपने किसे, पार्टीशन 2 से। पार्टीशन 2 का भी साइज आपका 4 MB है, 3 MB आपने एलोकेट करा दिया, 1 MB आपका रेस्ट बचा। इस साइज को आप इसे क्या बोलोगे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलोगे। सेम प्रोसेस आर देयर, पार्टीशन 3 एंड पार्टीशन 4। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? इफ अगर आपके पास क्या है, एक प्रोसेस P5 है, P5 का प्रोसेस का साइज क्या है, 4 MB। इस 4 MB प्रोसेस को आपको एलोकेट करानी है मेमोरी, तो क्या आप करा पाओगे? तो आपके पास कोई ऐसा पार्टीशन अवेलेबल है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जिसका साइज 4 MB है? नहीं है। बट हमारे पास क्या अनयूज स्पेस कितना है? हमारे पास पार्टीशन 1 से अनयूज स्पेस 1 MB है, पार्टीशन 2 से भी 1 MB है, पार्टीशन 3 से भी 1 MB है, और पार्टीशन 4 से भी 1 MB है। तो टोटल अनयूज कितना है, 4 MB है। और आपके प्रोसेस P5 का साइज भी कितना है, 4 MB है। तो क्या आप प्रोसेस P5 को एलोकेट कराओगे मेन मेमोरी के ऊपर? नहीं करा पाओगे, ड्यू टू द कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, क्योंकि आपके पास जो मेमोरी का साइज है वो कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में नहीं है। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो ये क्या प्रॉब्लम है, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। दैट मीन्स कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस, सॉरी कॉन्टिग्यूअस में दोनों टाइप की प्रॉब्लम है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी। बेसिकली जो टेक्निक है आपकी फिक्स साइज पार्टीशनिंग, इस टाइप की टेक्निक्स आपकी अर्ली 1960s में मेन फ्रेम टाइप के सिस्टम्स में यूज़ होती थी, जब फिक्स साइज के पार्टीशनिंग आप लोग करते थे मेन मेमोरी के साथ। आज के टाइम पे हम लेटेस्ट सिस्टम में जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो टेक्निक है आपकी नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में पेजिंग और सेगमेंटेशन टाइप की टेक्निक्स को हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं। बट यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछ लिया जाता है फिक्स साइज पार्टीशनिंग में और डायनेमिक पार्टीशनिंग का मतलब क्या है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। ओके, लेट्स सी है इन बिलो इमेज वी ऑलरेडी शो यू 4 MB partition is used to load only 3 MB process and remaining 1 MB get ghosted. That is called internal fragmentation. Let's talk about the external fragmentation also. The total unused space of the various partition cannot be used to load the processes even through there is space available but not in a continuous form. Okay, and so here remaining 1 MB space of each partition cannot be used as the unit to store 4 MB process, despite of the fact that sufficient space is available to load the process will not be loaded. Okay guys, the limitations also there. First limitation is there, if the process size is larger than the size of the maximum size partition, then that process cannot be loaded into the main memory. Therefore a limitation can be imposed on the process size, that is it cannot be larger than the size of the largest process. And last one is the degree of multi-programming is less. Why degree is multi-programming? Because that you cannot more number of processes enter in the main memory. Reason behind this, the degree of multi-programming, we simply mean the maximum number of processes that cannot be loaded into the main memory at the same time. In fixed partition, the degree of multi-programming is fixed and very less due to the fact that size of the partition cannot be varied according to the size of the process. That means आप पार्टीशन के साइज को चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोसेस। दैट मीन्स आप लेस नंबर ऑफ प्रोसेस एक टाइम पे आपकी मेन मेमोरी के अंदर एंटर कर सकती है। तो ड्यू टू डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग इज लेस इन केस ऑफ स्टैटिक पार्टीशन टेक्निक। ओके गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएबल साइज पार्टीशन। थैंक यू।